Hello students, in this video we are going to discuss next organelle of endomembrane system, that is Golgi apparatus. So this Golgi apparatus, it is also called as Golgi complex, and it is also called as a Golgi bodies. Golgi apparatus, also called as a Golgi complex and also called as a Golgi body. So this Golgi body, it was first discovered by Camillo Golgi, and he first observed densely stained reticular structures near the nucleus. After his death, the name Golgi bodies were given to this organelle. So what is Golgi bodies then? What is the definition of Golgi bodies? So Golgi bodies are nothing but the double membrane bound organelle. Golgi bodies is double membrane bound organelle consisting of many flat disc shaped sacs or cisternae having size of 0.5 micrometer to 1 micrometer in diameter. So what is Golgi apparatus? Golgi apparatus is nothing but the double membrane bound organelle consisting of many flat disc shaped sacs or cisternae having size of 0.5 micrometer to 1 micrometer in diameter. तो ये Golgi apparatus क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो फ्लैट डिस्क शेप सैक से बना हुआ होता है, फ्लैट डिस्क शेप सैक से बना हुआ होता है। और वो जो डिस्क शेप्ड सैक्स हैं Golgi apparatus में, उन्हें सिस्टर्ने भी कहा जाता है। द फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टर्ने, एंड उनकी साइज क्या होती है? 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, एंड दीज फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स they are present parallel to each other and they are stacked to each other, कि वो पैरेलली प्रेजेंट होते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे पैरेलल पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस सिस्टर्नी और दिस फ्लैट शेप्ड सैक्स, their number is variable. Their number is variable in different types of cells. In actively metabolizing cell, the number of cisternae is more, whereas in mature cells their number is less. And also in plant cell the number of cisternae are less than that of the animal cell. So remember this कि ये जो है cisternae जो है, फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स जो है Golgi apparatus में, उनका नंबर वेरिएबल होता है। एक्टिवली मेटाबोलाइजिंग सेल है तो उनमें इनका नंबर ज़्यादा होता है, और जब लेस मेटाबोलाइजिंग सेल है, मैच्योर सेल है, तो उनमें इनका नंबर कम होता है। और प्लांट सेल में एनिमल सेल से सिस्टर्नी का नंबर कम होता है। सो रिमेंबर दिस फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, गॉट दिस। The functional unit of Golgi complex is cisternae. The functional unit of Golgi complex is cisternae, and these cisternae, they are concentrically arranged near the nucleus, and they are concentrically arranged near the nucleus. ये जो cisternae है Golgi apparatus का फंक्शनल यूनिट होता है, और वो न्यूक्लियस के नियर ज़्यादा होते हैं। वो जो सिस्टर्नी का अरेंजमेंट ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होती है। सो दिस सिस्टर्नी, दे आर अरेंज्ड विथ कॉन्वेक्सिस और द फॉर्मिंग फेस एंड कॉन्क्यू ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। अभी ये जो सिस्टर्नी है जो न्यूक्लियस के पास अरेंज होते हैं, वो उनके दो टाइप्स है। फर्स्ट इज convexis or the forming face of the cisternae, and second जो है उनका पोर्शन, सेकंड जो पार्ट है, सेकंड जो टाइप है सिस्टर्नी का, उसे कहते हैं कॉन्क्यू ट्रांस
or the maturing phase. So these cisternae, they are arranged concentrically near the nucleus with distinct convexes or the forming phase and concave trans और the maturing phase. ये जो सिस्टरनी गोल्गी एपिटस के उनके दो टाइप्स है, कॉन्वेक्सिस और द फॉर्मिंग फेज जो न्यूक्लियस की तरफ होते हैं और कॉन्केव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ इनका पोजीशन होता है. तो ऐसे प्रकार इस प्रकार के दो टाइप्स के सिस्टरनी हमें गोल्गी एपिटस में दिखते हैं. सो दिस सिस्टरनी, so the cis and trans phases of the organelle are entirely different but interconnected. ये जो दो phases है, cis phase of the cisternae, sorry, cis phase of the Golgi apparatus and trans phase of the Golgi apparatus, they are entirely different because they are present in two direction and also in two position. First cis phase towards the nucleus and trans phase towards the plasma membrane. So they are entirely different. These phases of the organelle are entirely different but they are interconnected. So here see the diagram where you can easily observe the cis and trans phase of the Golgi apparatus. यहाँ पे हम जब डायग्राम देखते हैं तो ये गोल्गी एपिटस जो है कहाँ प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस के नियर. यहाँ पे न्यूक्लियस के नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे ही गोल्गी एपिटस प्रेजेंट होता है. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन हमें मालूम है, क्या तैयार करता है, प्रोटीन्स लिपिड्स तैयार करता है. तो यहाँ पे जो गोल्गी एपिटस यहाँ है तो ये गोल्गी एपिटस का पहला फेज है, फर्स्ट टाइप ऑफ फेज, सिस और फॉर्मिंग फेज कहा जाता है इसे. और सेकंड जो फेज है ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ट्रांस और मैच्योरिंग फेज. तो ये सिस और फॉर्मिंग फेज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन्स और लिपिड्स तैयार होते हैं वो सब इधर आते हैं सिस फेज में, फॉर्मिंग फेज में गोल्गी एपिटस के. ये जो सिस्टरनी, पहली सिस्टरनी, फिर ये दूसरी है, ये तीसरी है, तो इस सिस्टरनी में ये जो सभी प्रोटीन्स को जो को भी लिपिड्स तैयार हुए हैं तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वेसिकल के फॉर्म में यहाँ गोल्गी एपिटस के पास भेजता है. और गोल्गी एपिटस में यहाँ आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, उनका मॉडिफिकेशन होता है. तो यहाँ पे लिपिड्स जो हैं, लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स. तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है और मॉडिफिकेशन होके ये जो सभी प्रोटीन्स और लिपिड्स जो कोई भी यहाँ पे सिस्टरनी में वेसिकल्स ने भेजे उनका मॉडिफिकेशन होने के बाद वो इधर के एंड को आते हैं, मैच्योरिंग फेज के तरफ आते हैं गोल्गी एपिटस के. और यहाँ पे है फॉर्मिंग गोल्गी वेसिकल. तो ये जो मैच्योरिंग फेज के तरफ जब आते हैं तो इससे वेसिकल्स तैयार होते हैं और इस वेसिकल में जो भी कोई ये ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स तैयार हुए हैं वो वेसिकल्स यहाँ पे रिलीज़ किए जाते हैं. रिलीज़ करने के बाद उनका पूरा मैच्योरेशन होता है. मैच्योरेशन होने के बाद इस प्रकार से ऐसे ये वेसिकल फॉर्म में ये जो केमिकल्स है, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स यहाँ पे रिलीज़ की जाती है. और फिर यहाँ पे जो केमिकल्स आए हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, वो पिंच ऑफ करते हैं ये गोल्गी एपिटस के मेम्ब्रेन और वेसिकल फॉर्म में यहाँ पे रिलीज़ करते हैं साइटोप्लाज्म. एंड दिस केमिकल्स दे आर आइदर release into cytoplasm or either release outside the cell. So like such a process takes place in the Golgi apparatus. So got this? I hope you understood this. If any doubt you can ask me. Functions of Golgi apparatus. The Golgi apparatus principally performs the function of packaging materials to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell. So first important function of the Golgi apparatus is chemical modification of substances and their packaging. Chemical modification of substances or organic compounds and their packaging. Materials to be packaged in the form of vesicles from the endoplasmic reticulum fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the मैच्योरिंग फेज. तो पहला फंक्शन क्या है गोल्गी एपिटस का, केमिकली मॉडिफिकेशन ऑफ different organic compounds and their packaging. So Golgi apparatus chemically modify the different organic compounds and
then package it and release into the cytoplasm of the cell either or outside the cell. तो यहाँ पे क्या होता है, केमिकल मॉडिफिकेशन जब गोल्गी एपेरेटस करता है तब ये जो केमिकल्स है कहाँ से आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो तैयार करता है लिपिड्स और प्रोटीन्स. तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल के फॉर्म में ये केमिकल्स रिलीज करता है एंड दैट वेसिकल्स देन फ्यूज विद द गोल्गी एपेरेटस. यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा है कि ये जो वेसिकल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो रिलीज किए वो कहाँ फ्यूज होते हैं, सिस फेस ऑफ द गोल्गी एपेरेटस यहाँ पे फ्यूज होता है. और इंटरनली सिस्टर्नी में उनका क्या होता है, केमिकल मॉडिफिकेशन होता है. और क्या तैयार होते हैं, लिपिड्स आए होंगे तो लिपिड्स का मॉडिफिकेशन होगा. ग्लाइकोलिपिड्स में प्रोटीन्स आए हैं यहाँ पे तो प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स में. तो ये केमिकल मॉडिफिकेशन होता है. केमिकल मॉडिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे वेसिकल्स फॉर्म में उनका पैकेजिंग होता है. यहाँ पे वेसिकल्स रिलीज करता है फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स. और ये जो वेसिकल्स हैं जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने यहाँ पे रिलीज किए हैं वो इधर साइटोप्लाज्म में रहते हैं या आउटसाइड द सेल रिलीज किए जाते हैं. सो व्हाट दिस फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड देयर पैकेजिंग एंड देन दे रिलीज आइदर इनटू द साइटोप्लाज्म और आउटसाइड द सेल. So this explains why the Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum. इसलिए ये जो Golgi apparatus है नियर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहते हैं साइटोप्लाज्म में. A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi complex. So proteins and lipids are modified. Proteins and lipids released by endoplasmic reticulum are chemically modified inside the cisternae of Golgi complex. A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus before they are released from its trans phase. किस फेस में वो एंटर करते प्रोटीन्स लिपिड्स और मैचुरेशन के बाद केमिकल मॉडिफिकेशन के बाद ट्रांस फेज से वेसिकल के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में रिलीज किए जाते हैं. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स. देन व्हाट इज अनदर फंक्शन, गोल्गी एपेरेटस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट for formation of glycoproteins and glycolipids. So this is important function. So Golgi complex is the important site for the formation of Golgi complex is important site for formation of glycoproteins and glycolipids, because proteins and lipids they are modified inside the cisternae of Golgi complex and then they are released into the cytoplasm of the cell through the trans phase of the Golgi complex. So these are the functions of the Golgi complex. So I hope you understood all the contents of the video. Thank you.